Hi everyone. I guess we can start the session now, and let's begin with Hackable Fest. Then we'll move on to GitHub and then GitLab. Arshik, you may start. Yes, is my screen visible? Hello? Yes. Okay. So I'll try to keep this lesson short. This is session short. So let's start with the most basic question. What actually is Hacktoberfest? So Hacktoberfest is an event organized by DigitalOcean along with some other sponsors every year. This is organized to support open source development and is actually one of the best ways beginners in open source development can contribute to open source. Also, folks that submit 4 or more approved PR to participating projects earn a chance to donate a tree. How cool is that? And also, if you're not that type, you can also choose to get a free T-shirt instead. So this brings us to the second question: what actually is a valid PR? A PR that is considered approved is the one which have approving reviews. For example, let's go to any PR, for example. Let's check the profile itself. Wait. So, for those who don't know, this is actually the Hacktoberfest website. If you haven't registered, please do it right now. As you can see, I have already created one PR which is approved. So, all the PRs which either have a Hacktober accepted label on it or is approved by or merged by the maintainer of the repository is considered to be a valid PR. So, for example, this is a valid PR. So, you have to uh, contribute to a participating repository. So, what is a participating project? Means how can I consider which projects are considered to be participating projects? So, any project with a Hacktober topic in their about section is a participating project. For example, let's take this project for example. So as you can see, Hacktoberfest in the about section, it have Hacktoberfest in the topics. If you are a PR maintainer, you can actually add it from the settings. Just type Hacktoberfest. Uh, don't go with any other options like Hacktober 2020, Hacktober Accepted, or Hacktober. Only the ones with Hacktoberfest are considered to be participating. People do add other topics to gain attention, but so wait, let's so and yes, if your PR has an approved label or Hacktober accepted label, so then it's not required to for it to be participating or not. And this is the basic crux कि more pull requests खोलो और accepted organizations जो participate कर रही हैं जो repositories उन पे खोलो. तो चलो अब इसके बाद क्या बचा. हाँ, कई बार ऐसा होगा कि तुम पुल रिक्वेस्ट खोलोगे और ये तुम्हारे इन प्रोग्रेस में, जैसे मेरे अभी इन प्रोग्रेस में शो हो रही है. ये इस वजह से क्योंकि हमेशा पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद 14 डेज लगते हैं मैच्योर होने में इसको. और इस दौरान अगर तुम्हारी पुल रिक्वेस्ट स्पैम है या फिर
इनवैलिड है, जो कोशिश करना ना हो, तो फिर मेंटेनर के पास पावर होती है कि वो इनवैलिड या फिर स्पैम लेबल डाल सकता है तुम्हारी पुल रिक्वेस्ट पे। और अगर तुम्हारे पास 2 या उससे ज़्यादा इनवैलिड या स्पैम लेबल्स हैं तुम्हारी पुल रिक्वेस्ट पे, तो तुम्हें डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। सो इस बात का ध्यान रखना। और बाकी जो चीज़ें आती हैं उसमें कि कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे इसमें ना लिखा आएगा कि एक्सक्लूडेड है प्रोजेक्ट, तुमने पीआर बनाई बट वो एक्सक्लूडेड है, और तुम जाके रिपोजिटरी में चेक करो, पर रिपोजिटरी में हैकटोबरफेस्ट का टॉपिक है। सो वो इस वजह से होता है क्योंकि शायद से वो रिपोजिटरी किसी तरह से चीटी मेथड या फिर स्पैम रिपोजिटरी सपोर्ट करी थी, मतलब वो रिपोर्ट हुई है रिपोजिटरी। तो ये है कि हैकटोबरफेस्ट स्पैम अवॉइड भी करने के लिए होता है कि मैक्सिमम रिपोजिटरीज ना, जैसे कुछ रिपोजिटरी होते हैं जो सिर्फ बेसिक डॉक्यूमेंटेशन अपडेट होती है, कुछ होते हैं कि जैसे तुम्हें सीधा सीधा कहेंगे कि अपना नाम और कुछ इंफॉर्मेशन या नाम और गिटहब प्रोफाइल, जैसे कि किसी रिपोजिटरी में अपने किसी जेसॉन फाइल या फिर किसी रीडमी में डालो और हम तुम्हारा हैकटोबरफेस्ट एक्सेप्टेड लगा देंगे। तो मतलब एक तरह से वो चीटिंग वाला मेथड है, वो इवेंचुअली पकड़े जाते हैं और फिर वो रिपोजिटरीज तुम्हारी यहाँ पे ही कैंसिल हो जाएंगी, 14 डेज तक मैच्योर ही नहीं होंगी। तो अवॉइड करना है ऐसी रिपोजिटरी पे कंट्रीब्यूट करना। मतलब वहाँ पे यहाँ पे सही में लिखा आएगा एक्सक्लूडेड प्रोजेक्ट, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क सा बनाता है। सो हाँ, अपनी रिपोजिटरीज पे भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट वो रिकमेंडेड नहीं है। दैट्स ऑल। अगर तुम्हें इफ यू आर मेंटेनर, सो तुम्हारे रिपोजिटरी में एक हैकटोबरफेस्ट का वो लोगो होना चाहिए। और हाँ, एक सेकंड, एक चीज़ और, ढूंढे कैसे प्रोजेक्ट? तो सिंपल है, टॉपिक हैकटोबरफेस्ट होना चाहिए तुम्हारे रिपोजिटरी में, तो फिर हैकटोबरफेस्ट और गिटहब वैसे। Here you go. तो ये सारी रिपोजिटरी तुम देख सकते हो, 68,000 के से भी ज़्यादा रिपोजिटरीज हैं जो एक्सेप्ट करती हैं हैकटोबरफेस्ट के दौरान कॉन्ट्रीब्यूशंस तुम्हारा। तो फिर तो हर टेक स्टैक में कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तुम लैंग्वेज के हिसाब से भी सॉर्ट कर सकते हो, बेस्ट मैच वगैरह, मोर स्टार्स, फ्यूअर स्टार्स, मतलब सॉर्टिंग वगैरह भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एंड दैट्स इट। भैया फिर कौन सी में अलाउड था हमारे को चेक करने के लिए, कौन से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अक्टूबर, क्या बता दो कौन सी होती हैं अवेलेबल? हाँ, रीजन वो ये है कि जिस भी रिपोजिटरी के अबाउट सेक्शन में टॉपिक के अंदर हैकटोबरफेस्ट आता है वो अलाउड होती हैं। बट एक और वो होता है कि कई सारी बाद में रिजेक्ट्स भी होती हैं, जिस पर अगर कोई रिपोर्ट हो गई हो, वो फिलहाल जानने का कोई तरीका नहीं है। वो ना तुम्हारी जब तुम पुल रिक्वेस्ट ही खोलोगे ना, तो फिर वहाँ पे तुम्हें उस पर पता चलेगा। ये मैंने उनके डिस्कॉर्ड सर्वर में पूछा था, बट अनफॉर्चुनेटली कोई तरीका नहीं है इसको ट्रैक करने का। बट मोस्ट प्रोबेबली वो वाली होती हैं जिसमें बहुत ही बेसिक सा कुछ ऐड करने के लिए होता है, जैसे कि इंटरव्यू क्वेश्चन या फिर मतलब कोई बेसिक एल्गोरिदम बस किसी फाइल में ठूस रहे हो, मतलब स्पैम टाइप लग रही हो तुम्हें वो रिपोजिटरी, तो ऐसे अवॉइड करना। वरना अगर रिपोजिटरी होती है तो तुम्हारी तरफ से कुछ नहीं होगा, वो तुम्हारी पुल रिक्वेस्ट वो नहीं होगी, मैच्योर नहीं होगी। तो कोशिश करना कि 4 से थोड़ी सी ज़्यादा ही पुल रिक्वेस्ट खोलो। और इसको सर्च करने के लिए कैसे को सर्च करेंगे हम इसमें? गिटहब पे जाओ और हैकटोबरफेस्ट टॉपिक सर्च करो, बस हैकटोबरफेस्ट ऑल गिटहब में। मतलब एक तरह से टॉपिक होगा ना वो सारी में, तो फिर ये तुम सीधा इसमें चेक कर सकते हो। जैसे ये रहा हैकटोबरफेस्ट सेलेक्ट करा, और फिर ये सारा मैं इसका लिंक भी दे देता हूँ, और ये उसमें भी अवेलेबल है डिस्कॉर्ड सर्वर में हमारे। ये सारी रिपोजिटरीज फिलहाल हैं, उनमें हैकटोबरफेस्ट लेबल है।
तुम इसमें और ज़्यादा फिल्टर्ड सर्च भी कर सकते हो, जैसे कि अगर लैंग्वेज के लिए करना है, और अगर तुम्हें बिगिनर्स के लिए ढूंढना है, या फिर अगर तुम एकदम ही बिगिनर हो या फिर कुछ नए नए आए हो, ओपन सोर्स में बिगिनर हो, तो फिर लेबल्स चेक करना एक बार कि रिपोजिटरी में लेबल होगा, जैसे कि गुड फर्स्ट इशू होते हैं, और अप फॉर ग्रैब्स हो गए, और जैसे फर्स्ट टाइमर्स ओनली, ये मतलब तुम्हारे लिए वो होते हैं एकदम ही बिगिनर्स के लिए रेफर्ड। Also, we have some repos in our GDS USICD organization on GitHub, so you can check that out. I'll just put the link in the chat box. अगर तुम्हें गिटलैब का भी करना है, गिटलैब उन्होंने एक्चुअली इसी साल इंट्रोड्यूस करा है, तो फिर वहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हें वो कम मिलेंगे प्रोजेक्ट्स, बट गिटलैब में एकदम सेम है। जैसे कि अगर तुमने कभी गिटहब यूज़ करा है तो सेम है, बस पुल रिक्वेस्ट को मर्ज रिक्वेस्ट कहते हैं वहाँ पे। और अगर तुम्हारे पास गिटलैब की आईडी नहीं है, तुम एक्चुअली गिटहब से लॉग इन कर सकते हो गिटलैब में। लेट्स गो टू गिटलैब। लॉगिन वाया गिटहब। तो गिटलैब में मैंने भी ज़्यादा कुछ नहीं कर रखा, बस एक ही प्रोजेक्ट है इसमें, तो एक बार इसको चेक करते हैं। Find value projects, merge request comments, issues. तुम्हें इस पे ही मिलेंगे अगर थोड़ा सर्च करोगे, बट ये है कि कंपैरेटिवली गिटहब से कम होंगे, क्योंकि एक तो इस साल ही इंट्रोड्यूस कराया है और एक यूजर बेस भी गिटहब का बहुत बड़ा है कंपैरेटिवली गिटहब लैब के। बाकी सब एग्जैक्टली सेम होगा। और कुछ चीज़ें और भी होती हैं, जैसे कि क्या ये जो मैच्योरिंग पीरियड है, और भी लोग पूछते हैं कि जैसे 14 डेज का मैच्योर पीरियड है, जैसे कि हमने पुल रिक्वेस्ट खोली 30th को और वो अप्रूव होके मर्ज हो गई, बट मैच्योर नहीं हुई और हैक्टोबर इस दौरान खत्म हो गया, तो वो फिर भी काउंट होगी। तुम्हारी मर्जिंग फर्स्ट से लेके 30th के बीच में होनी चाहिए। मर्ज पुल रिक्वेस्ट जरूरी नहीं है, अगर तुम्हारी पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो, तुम्हारी पुल रिक्वेस्ट अप्रूव होनी चाहिए या तो मेंटेनर से, या फिर उस पे हैक्टोबर फेस्ट एक्सेप्टेड का लेबल होना चाहिए। अगर प्रोजेक्ट के उसमें टॉपिक्स में हैक्टोबर फेस्ट नहीं है और फिर भी तुम्हारी पुल रिक्वेस्ट पे हैक्टोबर एक्सेप्टेड का लेबल है, तो वो भी काउंट होगी, ठीक है ना। और अगर तुमने खोली और वो अप्रूव हो गई और तुमने पुल रिक्वेस्ट गलती से जैसे बंद कर दी या फिर वो भी हो गया, तो वो भी काउंट होती है। जब तक वो अप्रूव्ड है तब तक काउंट होगी वो। अप्रूव मतलब मेंटेनर से अप्रूव्ड होती है। तो चेक करो, रिव्यूइंग के लिए जाते हैं, कई बार 1-2 मेंटेनर्स ही होते हैं पूरे उसके लिए, एंड दैट्स इट, सिंपल है बहुत। और कुछ है तो बताओ, कोई डाउट है तो। गिटहब के कोई बेसिक्स में डाउट है तो वो भी पूछ लो अगर कुछ है तो। अंकुर एक बार गिटहब का कमांड लाइन का बताते हैं, कैसे पीआर करते हैं, क्लोन वगैरह करके रिपोजिटरी उठाते हैं। तो मेरी स्क्रीन अभी भी शेयर हो रही है ना? हाँ, चलो, तो फिलहाल जैसे सैंपल प्रोजेक्ट ही ले लेते हैं। तो क्लोन मैं SSH से करता हूँ। तुम HTTPS लिंक भी ले सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें वो पर्सनल एक्सेस टोकन बनाना पड़ेगा। अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो फिर डॉक्यूमेंटेशन में भी लिखा है, वरना एक बार ट्राई करके देखना खुद सर्च करके। अगर नहीं होता तो गिटहब उस पर हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर है, उस पर पूछ लेना, हेल्प मिल जाएगी, ठीक है ना। तो उस पर चलते हैं। अब मैं डेस्कटॉप पे क्लोन करता हूँ एक बार, ठीक है ना। तो इसके लिए गेट क्लोन यूज करूँगा।
रिपोजिटरी क्लोन करने के लिए कि मतलब मुझे इस रिपोजिटरी का एक क्लोन अपने उस पे चाहिए, इस कंप्यूटर पे। और दूसरा तुम कुछ देख रहे होगे कि डाउनलोड जिप भी कर सकते हैं। डाउनलोड जिप से ये होगा कि फिर ये जब क्लोन करेंगे तो फिर वो अपस्ट्रीम वाली जो रिपोजिटरी है, मतलब एक तरह से गेट रिपोजिटरी की तरह क्लोन होके आएगी, और अपस्ट्रीम इससे लिंक्ड होगा पहले से ही, कई सारी बेसिक चीजें पहले से करके देगा हमें गिटहब। बट अगर तुम जिप डाउनलोड कर रहे हो तो फिर एक तरह से वो अलग से, जैसे कोई गेम वगैरह कुछ भी फाइल डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, वैसे होगा, उसको कोई आइडिया नहीं कि कहाँ से आई है, क्या गेट रिपोजिटरी है, कुछ भी है, ठीक है ना। तो गेट क्लोन मैं फिलहाल ऐसे कर रहा हूँ, तो क्लोनिंग डन। अब टेक्स्ट एडिटर में जाते हैं, cd चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। अब हम आ गए यहाँ पे, तो स्टेटस, करंट स्टेटस चेक करने के लिए। तो अगर तुमने पिछला सेशन भी अटेंड करा होगा तो फिर तुम्हें पता होगा कि अगर तुम कभी भी फोर्क कर रहे हो प्रोजेक्ट, फोर्क क्या होता है? फोर्क होता है अपना वर्जन रिपोजिटरी का। जैसे मैं तो अभी मेंटेनर हूँ इसी रिपोजिटरी, ये मेरी रिपोजिटरी है, ठीक है, मैं तो सीधा चेंजेस पुश कर सकता हूँ। बट अगर कोई तुम में से कोई एक आता है, जैसे तुम्हें इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो तुम सीधा चेंजेस पे पुश नहीं कर सकते क्योंकि तुम मेंटेनर नहीं हो, तुम्हारे पास राइट एक्सेस नहीं है। तो तुम क्या करोगे? तुम इसका फोर्क बनाओगे, फोर्क तुम्हारा वर्जन होगा, तुम उस पर कुछ भी चेंजेस करते रहो। अगर तुम्हें लगता है कि ये चेंजेस मेन वाली रिपोजिटरी मतलब इस पे भी होने चाहिए, तो फिर वो तुम चेंजेस पुल रिक्वेस्ट के जरिए भेज सकते हो, ठीक है। तो उसका सबसे बड़ा एक वो होता है कि हमेशा दूसरी ब्रांच पे काम करो। क्यों कर रहे हैं मास्टर ब्रांच पे? क्यों काम नहीं करना चाहिए? क्योंकि ना कई बार ऐसा होगा कि तुम मास्टर ब्रांच पे काम कर रहे होगे और उसके बाद तुम पुल रिक्वेस्ट खोल लोगे, चेंजेस करके पुल रिक्वेस्ट खोल ली तुमने, ठीक है। अब वो पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई, मर्ज हो गई, अब तुम्हें कुछ और ऐड करना है। तो सबसे पहले तुम अपनी मास्टर अपडेट करोगे, मतलब अपनी लोकल रिपोजिटरी अपडेट करोगे फोर्क की। तो उसके लिए तुम गेट पुल का यूज करोगे। और हाँ, अगर तुम्हें सही में कोई अगर कमांड को आइडिया नहीं है तो तुम गेट हेल्प यूज कर सकते हो, आगे पुल लिख सकते हो, तो तुम्हारी डॉक्यूमेंटेशन खोल देगा तुम्हारे लिए। ये टेक्स्ट छोटा है, टेक्स्ट एडिटर बड़ा वो करूँ मैं? एक सेकेंड, हाँ, दिस शुड बी ओके। तो एक तरह से पूरी डॉक्यूमेंटेशन खोल देता है तुम्हारे लिए। अगर वैसे तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट टास्क होता है हर चीज़ के लिए, इससे बढ़िया तुम्हें इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगी। बट कई बार होता है कि समझ नहीं आता, तो फिर उसके लिए कई सारे रिसोर्सेज तुम ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, या फिर और फिर से बता रहा हूँ, डिस्कॉर्ड सर्वर भी है, उससे पूछ सकते हो। रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। तो हम गेट पुल कर सकते हैं। गेट पुल के आगे हम कोई ब्रांच वगैरह भी डाल सकते हैं। कोई एक स्पेसिफिक ब्रांच वगैरह पुल करनी है नहीं, फिलहाल हमारी ब्रांच अप टू डेट है तो पुल करने की जरूरत नहीं। तो ये होता है अगर हमने मास्टर पे कुछ काम कर रखा था, हमने चेंजेस प्रपोज करे, एक पीआर बनाई, तो कई बार होता है जब हम दूसरी पीआर बनाते हैं ना, तो उसमें पिछली पीआर के भी चेंजेस ऐड हो जाते हैं, वो रिडंडेंसी आती है। ये कई लोगों को दिक्कत होती है। ये रीजन यही होता है कि तुम मास्टर पे काम कर रहे हो, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो तुमने चेंजेस करे ना, तो गिटहब ना सारे कमिट्स जो होते हैं उनको उससे कमिट की आईडी या उसका जो हैश होता है उससे आइडेंटिफाई करता है। तो जो तुमने चेंजेस करे, जो तुम्हारी फोर्क पे एग्जिस्ट करते हैं ना, जैसे तुम्हारी पुल रिक्वेस्ट 2 कमिट्स आ गए हैं, तो वो जो तुमने चेंजेस करे उनका हैश अलग होगा, जो मर्ज हुए उनसे, जो मर्ज होके मेन रिपोजिटरी पे गए उनका हैश अलग होगा। तो जब तुम पुल करोगे ना, तो वो 2 अलग कमिट्स आएंगे। तो मास्टर तुम्हारी रहेगी, बट जो तुमने ऊपर चेंजेस कर रखे हैं ना वहीं पे रहेंगे। तुम उसके आगे कुछ भी ऐड करते रहो, वो स्टैक अप होता जाएगा। तो इसको या तो तुम सॉल्व कर सकते हो गेट रीसेट करके, गेट रीसेट यूज कर सकते हो। तो एक बार गेट हेल्प रीसेट करके देखते हैं कि कैसे यूज करते हैं, तो वो भी यूज करते हैं, ठीक है ना। गेट रीसेट है, रीसेट्स करंट हेड होता है जो हमारे रिपोजिटरी, मतलब एक तरह से जो तुम्हारे कमिट्स है ना, वो तुम एक तरह से ग्राफ की तरह मान लो, सारे कमिट्स एक नोड हैं और वो कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। जो करंट हेड है वो तुम्हारी रिपोजिटरी का सबसे आगे वाला नोड है, ये सबसे आगे वाला कमिट है टू स्पेसिफिक स्टेट, तुम उसको पीछे ले जा सकते हो। तो तुम इसमें सिंपल से कि अगर तुम्हें गेट रीसेट करना है तो एक बार गेट लॉग के बारे में बताओ। गेट लॉग
तुम्हें कमिट्स का लॉग देता है कि क्या क्या हुआ है इस कमिट में, ये डेट कब थी, ऑथर कौन था, और कमिट मैसेज के साथ साथ ये तुम्हारे मतलब तुम एक तरह से पूरी गिट रिपोजिटरी पीछे चेक कर सकते हो कुछ भी करना है तो अगर तुम्हारे ऐसे रिडंडेंट कमिट आ रहे हैं तो एक ऑप्शन होता है कि तुम गिट रीसेट कर सकते हो, वो जो रिडंडेंट कमिट है उनको पीछे चले जाओ तो, और फिर मास्टर के साथ वो कर दो, या फिर मास्टर से फोर्सफुल कर लो। मतलब बहुत वो होता है, मेस मचता है वो। तो ये ज़्यादा हेडेक्स करने की बजाय तुम सीधा दूसरी ब्रांच पे काम करो, चेंजेस प्रपोज करो, जैसे चेंजेस एक्सेप्ट हो जाए ब्रांच डिस्पोज कर दो वहीं पे ही। अगर तुमने कभी भी गिट पे ब्रांच खोली होगी तो एंड में ऑप्शन आता है, जैसे ही मर्ज होता है तो ऑप्शन आता है डिलीट ब्रांच करने का। एंड दैट्स इट। अगर तुम्हें कमांड लाइन और सीखनी है, कमांड लाइन में तुम मास्टर हो, तो फिर अगर तुम्हें गिटलैब भी यूज करना है तो गिटहब और गिटलैब में बस इसका चेंज होगा, ये तुम क्लोन करने के लिए कौन सी आईडी यूज कर रहे हो, ठीक है ना। मतलब ये तुम्हारा लिंक होगा, ये चेंज होगा, एग्जैक्ट सब कुछ एग्जैक्टली सेम है वरना। तो बस वहां पे ये एक पुल रिक्वेस्ट को मर्ज रिक्वेस्ट बोलते हैं। दैट्स इट। और उसके बाद भी मैं कई सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर हैकटोबर फेस्ट के रिलेटेड अगर तुम्हें कोई डाउट आता है, या फिर गिट के रिलेटेड डाउट आता है, या फिर अगर तुम्हारी पुल रिक्वेस्ट के दौरान कोई डाउट आ रहा है, तो फिर ऑब्वियसली वो डिस्कॉर्ड सर्वर है, बता सकता हूँ। और अगर तुम्हें इसके बारे में और जानना है किसी एक पर्टिकुलर, तो तुम पूछ भी सकते हो। और वैसे रिसोर्सेज प्रोवाइड भी करते हैं ये रिसोर्सेज सबके लिए हैं इधर, जैसे कि मेंटेनर्स के लिए और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इनके। इससे ये पता चल जाएगा तुम्हारे, अगर तुम मेंटेनर हो तो तुम्हारी रिपोजिटरी किस क्वालिटी मतलब किस स्टैंडर्ड्स पे अवेलेबल होनी चाहिए। पार्टिसिपेंट्स के लिए जो मोस्ट ऑफ तुम होगे, हाँ। और एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए भी, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, कंपनी, मतलब सबके लिए रिसोर्सेज भी हैं, और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में भी कई सारे क्वेश्चंस तो वही हैं जो मैंने भी कवर करे थे इस सेशन में, और कई सारे अलग भी होंगे। तो सारे रिसोर्सेज तुम्हारे सामने हैं अभी। 1 महीना है कंट्रीब्यूट करने के लिए, कम से कम 4 पुल रिक्वेस्ट खोलनी है। कोशिश करना कि वो पुल रिक्वेस्ट अच्छे पुल रिक्वेस्ट हों, ताकि मतलब टी शर्ट या फिर ट्री के पीछे मत भागना। वो करना ये एक तरह से तुम्हारा बहाना है कि तुम्हें ओपन सोर्स में काम करने के लिए मिल रहा है, क्योंकि इस दौरान हैकटोबर फेस्ट के दौरान कई सारी रिपोजिटरीज एक्टिव होती हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स एक्टिव होते हैं कि उनको कंट्रीब्यूटर्स मिलेंगे। तो तुम्हें कंट्रीब्यूट करने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जो इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारे कंट्रीब्यूशन का, जो बाकी पूरे साल मुश्किल है थोड़ा सा मिलना। तो दैट्स इट। और मतलब पूरा अक्टूबर है, पूरा अक्टूबर तुम्हारे पास। जस्ट सर्च करो कि कितने रिपोजिटरीज अवेलेबल हैं, कितने रिपोजिटरीज हैं, ओपन सोर्स में क्या क्या काम होता है, कौन सा टेक स्टैक्स पे काम होता है। So it will be very beneficial for you to check out what are the different tech stacks available और तुम किस में contribute कर सकते हो। हाँ, मतलब 68,000 रिपोजिटरीज से भी ज़्यादा थी अभी जो हमने चेक करा, और ये बढ़ रही थी। मैंने तो 15-20 मिनट पहले चेक करा, 67 थी। मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हैं रिपोजिटरीज भी। So take this time to learn what is open source, what is GitHub, what is open source development. So take this time to learn. Okay? और अगर तुम्हें कहीं भी डाउट आता है या फिर लग रहा है कि नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो फिर सही में पूरी कम्युनिटी है, GDSC है, तुम डिस्कॉर्ड सर्वर पे पूछ सकते हो, DM कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, और एक तरह से मतलब सारी इन्फॉर्मेशन तो इनकी रिपोजिटरी पे ही अवेलेबल है, सॉरी इनके वेब पेज पे ही। सो तुम्हें बस फर्स्ट स्टेप लेना है। और हाँ, टी शर्ट्स और प्राइसेस किस क्राइटेरिया पे मिलेगा, अगर जब तुम्हारे कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि 14 डेज मैच्योर होने पे लगते हैं, तो मतलब 14 डेज बाद अगर कंप्लीट होता है तुम्हारा प्रोजेक्ट, और अगर तुम फर्स्ट 50 to 60,000 लोगों में आते हो, तो तुम चूज कर सकते हो। मतलब और यही है कि ऐसा नहीं है कि 50,000 शर्ट्स अलग हैं, 50,000 ट्रीज अलग हैं। 50,000 रिवॉर्ड कूपन्स होते हैं, वो तुम रिडीम कर सकते हैं या तो एक शर्ट से या फिर एक
वॉलंटरी डोनेशन से। वो आगे का क्राइटेरिया वो तुम्हें हैक्टोबर समझा देगा। अगर नहीं उसमें भी डाउट आ रहा है तो वो भी पूछ लेना, वो बात की बात है। बट अगर तुम्हें लग रहा है कि शायद से नहीं हो पाएगा, बट तो एक तो देखो हो जाएगा। मैंने पिछले साल अक्टूबर के एंड में वो करा थे, सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस करे थे और फिर भी मुझे मिली है शर्ट, तो कंप्लीट तो हो जाता है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि जो अभी कुछ लोग 1 अक्टूबर को ही कई सारी पीआरस खोल दी जिन्होंने, अगर तुम्हें पता चल रहा है कि न्यूज़ मिल रही है कहीं से कि एक बंदे ने पहले से ही 4 पीआर खोल दी, तो देखो 2 रीज़न है। या तो वो पहले से ही तैयार करके बैठा है वो बंदा, वो तो दैट्स गुड, या फिर वो रिपोजिटरीज गड़बड़ है। समझ रहे हो, जैसे स्पैमी रिपोजिटरीज कही थी मैंने, तो इस बात का भी ध्यान रखना। और बताओ, कोई डाउट हो तो भी पूछो भैया। फर्स्ट 7 पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होंगी ना केवल, तो उसके बाद कंट्रीब्यूशन करने का फायदा है। अगर टी शर्ट चाहिए तो नहीं है बट तुम्हें नहीं पता चलेगा एंड तक कि फर्स्ट 70,000 में हो कि नहीं तुम क्यों। और दूसरा रीजन ये भी है कि तुम जब वो कर रहे होगे तो मतलब एंड तक पॉसिबिलिटीज होती हैं कि कई सारे जो स्पैम वगैरह हैं वो निकाल देंगे, वो फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो फिर मतलब बहुत आसानी से आ जाओगे तुम फर्स्ट 70,000 में, अगर सारे के सारे भी अच्छे से कंट्रीब्यूशन करोगे तो। नहीं होगा तो मैं अपनी शर्ट भेज दूंगा, बोलो और क्या चाहिए तुम्हें। बट ये होगा कि जो तुम्हारे 4 कंट्रीब्यूशन होगे ना, अगर तुम 4 वैलिड कंट्रीब्यूशन करोगे तो उसका बहुत ज्यादा फायदा होगा, तुम्हारी शर्ट से ज्यादा फायदा देगा। मतलब तुम्हारी एक तरह से गिटहब की रिपोजिटरी, मतलब गिटहब की प्रोफाइल एक तरह से तुम्हें ओपन सोर्स की वो आदत पड़ जाएगी। आगे के जितने भी इवेंट्स होते हैं ओपन सोर्स के, जैसे विंटर ऑफ कोड हो गया, समर ऑफ कोड हो गया, जीसॉक हो गया बाद में, तो कई सारी चीजें बहुत इजी हो जाएंगी आगे, तुम्हें एक्सपीरियंस मिल जाएगा उसका। सो टी शर्ट के पीछे मत भागो, एक्सपीरियंस के पीछे भागो, बेस्ट टाइम है। As I said कि this is a very good learning opportunity for you. तो ये सारे स्वैग इसलिए होते हैं ताकि हम जो टेक्नोलॉजी है उसको सीखें और उसको यूज करें, ठीक है। तो मतलब मेक अ पुल रिक्वेस्ट, ठीक है, अभी शर्ट ले लो, मतलब उस शर्ट लेने के लिए पीआर कर लो 4, एंड देन सर्च अबाउट कि ओपन सोर्स इवेंट में क्या कर सकते हैं। देयर इज एन ओपन सोर्स इवेंट विंटर ऑफ कोड which would be starting from 24th of October. The registrations have opened. मैंने वेबसाइट का लिंक भेज दिया है चैट बॉक्स में। Go on to that website, do register for it, and it is a GSOC style open source event. अगर तुम्हें GSOC के बारे में नहीं पता तो या फिर कोई और डाउट है GSOC के बारे में तो डिस्कॉर्ड पर पूछ लेना, हम बता देंगे। Otherwise, I suggest a YouTube video about that, GSOC के बारे में, and it would be very good for your resume, ठीक है। तो in this you would be collaborating with many organizations on GitHub and many different companies which have their products as open source products, and you can, if you would have to make a proposal for that, और अगर तुम्हारा proposal select होता है then you would be able to work with the organization, ठीक है। तो ये तुम्हारा मतलब जैसे इंडस्ट्री स्टाइल डेवलपमेंट के लिए तुमको हेल्प करेगा, ठीक है। तो जस्ट गो फॉर दैट, ओके। किसी को भी गिटहब, गिटलैब या फिर हैक्टोबर फेस्ट के बारे में या फिर ओपन सोर्स के बारे में या जीसॉक के बारे में कोई भी डाउट है तो यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स और यू कैन आस्क। ओके, सो जीसॉक में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? तो जो भी स्पीकर है हमारे यहाँ पर आर्सनिक, उसका रियल नेम is Ankur. He is a GSOC himself. He participated in GSOC in this year only and worked with GCC. So Ankur, if you want to take this question. हाँ, तुम्हें GSOC में कंट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए एक तरह से पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो जनवरी के अराउंड ना तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन अनाउंसमेंट्स हो जाएंगी। तुम्हें एक तो अगर तुम्हें ना इस साल के अगले साल के GSOC में पार्ट लेना है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन अभी से ढूंढने शुरू कर दो।
और अब कैसे ढूंढते हैं, कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं वर्क फ्लो, तुम्हें अगर तुम हैक्टोबर में भी अगर ढंग से पार्टिसिपेट कर रहे हो ना, तो तुम्हें उससे बेसिक आइडिया हो जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट कैसे करते हैं या फिर प्रोजेक्ट मेंटेनर से बात कैसे करते हैं, ठीक है, पुल रिक्वेस्ट वगैरह का भी। और जीसॉक का ये है कि वो जनवरी के अराउंड वो तुम उनकी वेबसाइट पे जाओगे तो तुम्हारी पूरी टाइमलाइन दे देगा वो, ठीक है। तो जनवरी के अराउंड ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करती है जीसॉक के लिए, और तुम्हारे लिए खुलेगा वो मार्च या अप्रैल के अराउंड, जब तुम अपनी आईडी बना सकते हो। और उसके बाद तुम्हें, और आइडियली तुम्हें गूगल के हिसाब से तुम्हें उस टाइम पे अप्रोच करना होता है कंपनीज को, बट उससे बहुत पहले से वो करने की कोशिश करना कि अगर तुम्हें कंपनी से बात करनी है या फिर ऑर्गेनाइजेशन से बात करनी है। इसलिए कह रहा हूँ, अगर तुम्हें जीसॉक क्लियर करने की सोच रहे हो अगले साल, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन अभी से ढूंढने लग जाओ। अक्टूबर या नवंबर के अराउंड तुम्हारे पास फिक्स्ड होना चाहिए कि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट लेना है। अगर कुछ डाउट है, और मतलब उसके बाद आगे जो कंट्रीब्यूशन, उसके बाद तुम्हें प्रपोजल लिखना होता है पूरा कि मैंने ये प्रोजेक्ट चुना है, इसमें मैं ये करूँगा। तो जीसॉक हमें 12 वीक्स देता है आइडियली। इस साल 10 वीक्स दिए थे कोविड की वजह से, शायद से अगले साल भी चेंज हो, तुम्हें सारा टाइमलाइन पता चल जाएगा। तो इस पूरे 10 वीक्स को मैं कैसे यूटिलाइज करूँगा, वो सारी चीज़ें मैं किसी फ्यूचर उसमें कवर करूँगा। बट वो बात की नहीं, अगर तुम्हें अभी से ही कुछ करना है तो फिर जाओ जीसॉक की वेबसाइट पे, ऑर्गेनाइजेशन चेक करो, अपना टेक स्टैक देखो, इंटरेस्ट देखो, और आराम से ढूंढो कोई ढंग की ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये है कि अक्टूबर के एंड तक कोई एक ऑर्गेनाइजेशन फिक्स कर लेना, बहुत आसान हो जाएगा उसके बाद तुम्हारा सॉल्व करना। मतलब अगर तुम धीरे धीरे अभी से कम्युनिकेट करने लग जाओगे ना ऑर्गेनाइजेशन से, और आगे पूछोगे हाउ वी राइट अ प्रपोजल, हाँ, प्रपोजल कैसे लिखना है, उसका एक सेशन विंटर ऑफ कोड के इवेंट पे भी होगा 24 अक्टूबर को अभी। Anurag has asked a question. उसके ऊपर नहीं होगा काउंट। मैच्योर का टाइम इस वजह से देते हैं, 14 डेज इतना लंबा इसलिए किया है। एक बार काउंट हो गई तो हो गई तुम्हारी पीआर कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद बस यही हो सकता है कि तुमने दूसरी पीआर खोली और उसको मेंटेनर ने इनवैलिड मार दिया। हाँ, तो डेव मतलब तुम टेक स्टैक पूछ रहे हो, वेब डेवलपमेंट। अच्छा, तुम पूछ रहे हो कि किस तरह, मतलब कौन से डेवलपमेंट, क्या लैंग्वेज वगैरह आनी चाहिए उसके लिए। Ayush, you can unmute and ask. भैया मैं ये पूछ रहा था कि कंट्रीब्यूट करना मतलब डेवलपमेंट नहीं है, मतलब जैसे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस के काफी सारे टॉपिक्स होते हैं ना, किसमें करना है। तो कुछ लोग कहते हैं डेवलपमेंट ही सबसे इजी पड़ता है, तो आखिर भी बड़ा मुश्किल है। डेवलपमेंट में सबसे इजी मतलब तुम क्या कहना चाहते हो? तुम सिर्फ पूछ रहे हो कि क्या डॉक्यूमेंटेशन चेंज एक्सेप्ट करेंगे कि वो नहीं होगा, है ना, या फिर सिर्फ कोड बेस का चेंज, या फिर कुछ और? हाँ मतलब देखो, अब तुमने रिपोजिटरी में जाके चेक करना, और उस पर ना इश्यूज खोल रखे होंगे उन्होंने कि कौन से, मतलब क्या क्या चेंजेस वो मान रहे हैं कि हैक्टोबर के अंडर आते हैं, और फिर वो करना। आमतौर पे सिंपल डॉक्यूमेंटेशन चेंज अलाउ नहीं करते, बट डॉक्यूमेंटेशन चेंज भी चल जाते हैं। और अगर तुम वो पूछ रहे हो कि वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट वगैरह में, तो गिटहब हाईली वेब डेवलपमेंट वो है, सेंट्रिक है। मतलब मैक्सिमम रिपोजिटरीज गिटहब पे वेब डेवलपमेंट रिलेटेड है। और मैंने आज तक वेब डेवलपमेंट नहीं करी, मैंने पिछला अक्टूबर कंप्लीट करा था, ये वाला भी कंप्लीट करने की सोच रहा हूँ। जीसॉक में भी पार्ट लिया था, तो फिर मुझे नहीं लगता दिक्कत होनी चाहिए इस बात की। मतलब मैं अभी तो कह रहा हूँ, मैं 68 के आसपास 68,000 रिपोजिटरीज हैं, मतलब हर टॉपिक कवर होगा तुम्हारा। नहीं होगा तो खुद की रिपोजिटरी खोल दो, एक पोस्ट में डाल दो। मतलब एक तरह से प्रोजेक्ट जो तुम्हारा है, तुम्हें कुछ ऐड करना है, एज अ मेंटेनर भी काम कर सकते हो तुम। हाँ,
ये कवर और करता हूँ मैं, ये सही तुमने बताया कि एज अ मेंटेनर क्या कर सकते हो। अगर तुम्हारी रिपोजिटरी में हैकटोबर का टैग है तो फिर उसमें तुम्हारे 5 या 6 इंटरेक्शंस होते हैं ना, वो भी काउंट होते हैं तुम्हारे, ठीक है। अगर तुम बहुत एंगेजिंग मेंटेनर हो, मतलब कई सारी पुल रिक्वेस्ट हैं तुम्हारे पास और तुम उसको अप्रूव कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, तो तुम एक्चुअली बिना एक पुल रिक्वेस्ट खोले भी कंप्लीट कर सकते हो। ये उन्होंने स्पेसिफाई नहीं कर रखा एग्जैक्टली कितनी वो जरूरी है, कितने इंटरेक्शन जरूरी हैं, बट मेरे हिसाब से 5 या 6 के अराउंड होते हैं ये। जैसे तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट इंटरेक्शन, रुक जाओ इनके रिसोर्स पेजेस पे चलते हैं, मैं स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी। नहीं, अभी स्क्रीन पे ऑल्सो इन्होंने अभी बताया है कि 10,000 मेंटेनर्स को ही वो मिलेंगे, स्लैब्स वगैरह मिलेंगे। हाँ, तो इफ यू आर अ वेरी इंटरैक्टिव मेंटर और तुमने 5 या 6 पुल रिक्वेस्ट को रिव्यू किया है और उस पे लेबल किया है, या तो हैकटोबर एक्सेप्टेड का या फिर इनवैलिड का, फिर स्पैम का, तो फर्स्ट 10,000 मेंटेनर्स विल आल्सो गेट फ्लैग्स। और ये नहीं है कि अगर तुम मेंटेनर हो तो साथ में कंटेस्टेंट नहीं हो सकते। तुमने अगर वो अप्लाई करा होगा, रजिस्टर करा होगा अक्टूबर के लिए, तो फिर चेक बॉक्सेस आते हैं। अगर तुमने उसमें दोनों भी कर सकते हो, इवेंट ऑर्गेनाइजर, मेंटेनर, बाकी सब तुम्हें इसमें मिल जाएगा। मैंने बताया था ना रिसोर्सेज में, जैसे मेंटेनर्स का चेक करते हैं। जैसे मेंटेनर टी-शर्ट विदाउट हैविंग टू डू अ फुल रिक्वेस्ट, इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा। मैं ढूंढ रहा था पहले भी कितने इंटरेक्शंस होते हैं। मैंने इनके डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी पूछा था, उनको भी उन्होंने पूरा वो नहीं बताया था। और हाँ, ये जो तुम्हारे पुल रिक्वेस्ट होती हैं, ये भी एक उस पे जाती हैं, एक तरह से चीटिंग, वो नहीं होता वो वाला चीटिंग डिटेक्ट करने का एल्गोरिथम, वो तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियल है उनके हाथ में। बट बेसिक क्रुक्स ये है कि अगर तुम्हें लगता है तुमने मेहनत कर रखी है उस पे और डिसेंट है वो प्रोजेक्ट, वैलिड सा लग रहा है, तो फिर तुम्हारी पुल रिक्वेस्ट गारंटेड एक्सेप्ट होगी। और कोई क्वेश्चन है तो पूछो। If you have any other questions, you can just put it on the Discord server and we'll reply to it. If there are no questions now, then we can wrap up this session. Thank you, yeah. So thank you all for joining, and all the best for your Hacktober Fest 2021. Again, I'm telling you, if you have any other doubt about Hacktober Fest, about GitHub, about any open source development, or any tech-related doubt about GDSC, about the events that we organize, you can just ask on the Discord server and we'll get back to you. Thank you all for joining. You can leave now.